So welcome back, friends. Namaste, bhai और बहनों. Uh, Finally, Mr. Vijay Thalapathy has become the Chief Minister of Tamil Nadu. Uh, it's a well-deserved win for him because that was the mandate of the people of Tamil Nadu to have him. So one should respect it. The problem is that he has got one person from one party, one person from another party, two people, and all of them want a berth in his cabinet. They may be having only one vote, one seat, but they all want one berth in the cabinet, and that I think may make it rather difficult in future. Immediately within an hour of his um, being sworn in, and he has put out a very charged, emotionally charged speech. Vijay claims that he has inherited a state with rupees 10 lakh crores in debt. So that's the Tamilaga Veti Kasakam TVK talking about 10 lakh crore in debt that they're saying that the DMK has emptied the state coffers and we are inheriting such a bad economy. Immediately we had the DMK or the Dravida Munnetra Kazhagam chief and former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin saying that this is not true, that a state's debt is within the, or rather was within the permissible limits, and they have not taken any excessive debt, and that Vijay's claims may disappoint the people who voted for him. So, tough situation, not a great start, but anyway, Vijay is saying that he'll be bringing out a white paper. तो देखते हैं white paper में क्या रहता है. वो कह रहे हैं तो ज़रूर उनका कुछ calculations होंगे. We should give him time and space. इतना बड़ा mandate Gen Z ने उनको दिया है तमिलनाडु के लिए, तो respect it and hope वो कुछ अच्छा करेंगे. This is the first time that I think in 40 years Dravidian parties are not in power and they have been out and somebody else has come in. तो respect the mandate of the people. बहुत डर है लोगों को ऑन आईटी कंपनीज जो सर्विसेज हैं. मैं एक वीडियो में एड्रेस आज ये करना चाहता हूँ कि हाँ, शॉर्ट रन में तकलीफ आएगी क्योंकि इतना हाइप हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी सच अ बिग थिंग एंड द इंडियन आईटी कंपनीज हैव नॉट डन वेरी वेल. देयर आर टू थिंग्स. वन इज द creation of the infrastructure and one is the dissipation of the knowledge, the dissipation of the technology. So when you're creating the technology base, you need a lot of hardware. और अभी आप देखे होंगे कि गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, इवन इन इंडिया TCS वगैरह ने काफ़ी ये डेटा सेंटर्स पे फोकस किया है, काफ़ी पैसे लगाए हैं. तो ये अच्छा रहता है, ये फर्स्ट स्टेज रहता है जब भी ये न्यू टेक्नोलॉजी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे इंट्रोड्यूस हुई है, तो लॉट ऑफ मनी गोज इनटू ऑल दिस हार्डवेयर एंड दैट्स व्हाट उन्होंने किया है. अब ये सारा जो पैसा है ये तो लगा चुके, पावर सेंटर्स, पावर डिमांड बढ़ेगा, ये सब लगाते जा रहे हैं, ठीक है. और डेटा सेंटर्स पे तो बहुत ही मिलियंस एंड मिलियंस, इवन बिलियंस खर्चा होते जा रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड. जब इंटरनेट भी आया था, अगर आपको याद होगा, तो 93 में ये सारा जो .com बने इंटरनेट पे 93 में स्टार्ट हुआ और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना. केबल टेक्नोलॉजीज, कंपनीज लाइक सिस्को, IBM, HP, ये सब बहुत पॉपुलर हो गए. उनके जो शेयर वैल्यूएशंस हैं वो भी बहुत ड्रामेटिकली दे वर शूटिंग अप. So this is one stage, hardware, using hardware to set up the technology. The second stage is beyond that, that is the diffusion of the technology. लोगों तक पहुंचे कि वो यूज करे, ठीक है. अब कहा गया है कि एंथ्रोपिक ने HR की सिस्टम बनाई है कि आप HR का जो है वहाँ से ही प्रोग्राम उठा ले, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है और आप यूज़ कर ले. तो क्यों आप इन्फोसिस या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी के पास जाएंगे? एंथ्रोपिक का ही ले लो, वहीं से ही चला दो. लेकिन हमने ढूंढे तो पता पड़ा कि वर्क डे जो है, इट इज़ अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मैनेजिंग HR, वो एंथ्रोपिक अभी तक यूज़ कर रहा है. मतलब खुद का जो बनाया वो यूज़ नहीं कर रहा है.
वर्क डे जो पूरा एंटरप्राइज सिस्टम्स के ऊपर चलता है, वो खुद यूज़ कर रहे हैं. इवन अदर कंपनीज आर यूजिंग इट एज ऑफ नाउ. जैसे गूगल भी इतनी सारी उन्होंने डेटा सेंटर्स में किया, लेकिन खुद अभी तक वर्क डे को ही यूज़ कर रहा है. तो ये सब इतना आसान नहीं है. ये सब डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए डेफिनेटली आईटी कंपनीज का रोल होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा. अभी आप फिर मुझे कहेंगे कि कल का कल जाके उठा देंगे लोग मेरे कहने से इन्फोसिस के स्टॉक. अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा. ये सेकंड स्टेज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. वहाँ पे भारत की जो कंपनीज हैं वो यूज़फुल होंगी. तब तक थोड़ा सा आप लोगों को शांत बैठना होगा. ठीक है. हार्डवेयर में वैसे भी हमारे पास जो है, हम फोर फ्रंट में तो रहे नहीं. इंटरनेट के टाइम भी हम फोर फ्रंट में नहीं थे. हमने ये सब सिस्को के ये सब जो डेटा है, हमने ये जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ है, हार्डवेयर है, वहाँ पे तो भारत नहीं था. बाद में आया. हमेशा हम थोड़ा सा लेट आते हैं. क्रिकेट में भी जो वर्ल्ड कप होता है, पहले हम नहीं, एक दो मैच हार के फिर बाद में आते हैं. ऐसी आदत है, लेकिन जीत जाते हैं. ठीक है. यहाँ भी जीत जाएंगे, तो चिंता की बात नहीं है. इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट. अच्छा रहेगा. इनफैक्ट ये थोड़ा सा अगर राहत मिल जाए गल्फ क्राइसिस में, तो वहाँ भी राहत मिल जाएगी. भारत अच्छा चल पड़ेगा. लेकिन ये मैंने ये एक वार्निंग दी है कि जो मैंने अपना स्टडी किया 2026, 27, 28, आगे भी बढ़ते गया हूँ. मैं ऐसे ही फोरकास्ट करता हूँ. वीकेंड को 2 दिन में बहुत अपना जाके स्टडी करते रहता हूँ कि मेरे एल्गोरिथम्स क्या बोलते हैं. कहते हैं कि फिर एक प्रॉब्लम आने वाला है. तब तक तो आप यहाँ तो एंजॉय करें थोड़ा. हाँ, अगर ये खुल जाता है, ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है. Among the important things this week is President Donald Trump's anticipated visit to Beijing, and let's see what gets concluded over there. और उसके पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. आगे जाने के लिए आप हमारा प्रीमियम वैल्यू जरूर ज्वाइन कर सकते हैं. गुड समर के टाइम पे डिस्काउंट ऑफर है, एंड यू कैन गेट 1 वीक प्रेडिक्शंस इन एडवांस. तो आप इंटेलिजेंटली ट्रेड कर सकते हैं. आपको नक्शा मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा कि कैसे ये हफ्ता होने वाला है. उसके बेसिस पे आप अच्छी और इंटेलिजेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं. संपर्क करने का नंबर 9820861044. फिर से ये अच्छा है. तमिलनाडु में फाइनली एक गवर्नमेंट है और विजय साहब ने शुरू किया है. अब वो उसको कितना ये लोग डीएम के आईडीएम के सपोर्ट करते हैं, और वो खुद भी अपने बल पे अगर अच्छा कार्य करेंगे तो इट विल बी गुड. एआई रिलेटेड जो है आईटी सेक्टर को थोड़ा सा तकलीफ आएगी, लेकिन इवेंचुअली हम जीत पाएंगे. मेरे को फिर भी अभी भी पूरा हौसला है, होप है कि भारत एक सॉलिड इकोनॉमिक पावर बन के उभरेगा. सिर्फ यू शुड ऑल बी यूनाइटेड. ओके. तो इसके बेसिस पे आप ज़रूर होप रख के चलिए. एक दूसरे को एनकरेज करिए और आगे बढ़िए. नहीं तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. ऐसे करके चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा. और आप, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. देयर शुड बी एन एक्साइटिंग वीक अहेड. ओके, टेक केयर. गुड बाय.